Hello, everybody. This is Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to today's super cool, super awesome, and absolutely amazing session. But before we begin, my dear kids, it's a humble request from a baby channel of Vedantu, जो भी सिर्फ 7 months पहले ही शुरू हुआ है आपकी बायो रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए. वी वुड लाइक कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों. दैट गिव्स अस द अटेंशन, द लव एंड द फीडबैक कि हम आपके लिए और अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रोल करके लेकर आए. सो मेक श्योर माय डियर चिल्ड्रन दैट ऑल ऑफ यू सेंड अप द थम्स अप विद लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज डू दैट. वी रियली रियली वुड लव योर feedback and appreciation back. बच्चों, we have a super से भी ऊपर amazing telegram group and our telegram group is 30,000 members strong already. We're going to be touching 35,000 soon. Can you imagine? So make sure daily quizzes होती हैं. वानी मैम वहाँ पे motivation करती हैं, आप लोगों से interact करती हैं. All of this and much more. So please guys, make sure that you like, you share and you subscribe to our super duper amazing telegram group also. राइट उसको प्लीज वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक उसका नाम है. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से और बिकम अ पार्ट ऑफ अ टेलीग्राम ग्रुप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल हैव बीन आस्किंग अस फॉर टेस्ट सीरीज कि आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं. यू हैव रियली बीन आस्किंग अस फॉर क्रैश कोर्स बिकॉज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल अंडर वन रूफ लाइव क्लासेस से पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा. सो वी हैव अ सुपर अमेजिंग क्रैश कोर्स एंड इफ यू यूज वानी मैम का कोड जिसका कोड है VD ये क्रैश कोर्स विच इज अवेलेबल फॉर क्लोज टू 24,000 रुपीज बिकम्स अवेलेबल जस्ट फॉर ₹5,999. सो VD कोड लगाइए फॉर द क्रैश कोर्स और आ जाइए. और अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो VD टेस्ट राइट VDNT.in/VD टेस्ट पे जाना है. और अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है VDNT.in/NEET क्रैश कोर्स पे जाइए, लगाइए कोड एंड बिना कोड के मत लीजिए बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. कोड लगाकर आ जाइए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सुपर अमेजिंग टॉपिक. हेलो बच्चों, चलो तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सुपर डुपर अमेजिंग टॉपिक विच इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. इन टुडेज एंड टुमारोज लेक्चर आई विल ट्राई एंड recompile the entire human reproduction in just 2 lectures. It's very very important because it's the first unit of class 12, so it's a very important unit. Let's go forward and let's do it. Chaliye. Yes, chaliye. So let's start. Do you know this diagram? Do you all know this diagram? चलो start करें class आज की. Do you all know this diagram? तो शुरू करें यहाँ से. Should I start from here? Right, this is a very very interesting diagram. Now I have something super cool to tell you. Let us say Nanshi is 17 years old. So we have a girl called Nanshi in the class. I've just happened to read her name. So let us say Nanshi, who's in our class, is 17 years old. And if I tell you that Nanshi is not 17 years old, but some cells in her body are 47-year-old, would you believe me? Would you believe me? Say yes or no. Yes, some cells in our body are 47 years old. That means, let us say she was born. Yes, yes, oh my God, yes, that's what I'm going to be teaching you in today's class. Never, yes, but it is right. Some cells in her body are 47 years old. Suppose Nanshi was born when her mother was 30 years old. Suppose she was born when her mother was 30 years old. You know, the eggs go generation to generation. I'll tell you how. So when Nanshi was 30 years old, the eggs in her mother were when she was a zygote. Yes or no? So that egg in her mother also is 30 years old. Yes or no? Because her mother's eggs, or any woman for that matter, any woman, the eggs in her body form in the stage of the zygote. Yes or no? And that is a lot of MCQs come in today's class. See, it's not going to be your normal reproduction class because I'm going to focus on certain facts. I'm going to focus on knowledge delivery. So it's not going to be a normal reproduction class because we are going to focus on the higher order thinking skill kind of questions. You get my point, everybody? You get my point, everybody? I want you to focus in the class, please. A lot of focus in my class. So any woman, all her eggs are produced in zygote. So she is 17, but her egg were when her mother is 30, so the egg's age is 30. So 30 plus 17 makes her 47. Got it, everybody?
So this is what I'm going to teach you in primordial follicle, that primordial follicles are produced at the time of zygote formation, and from there I will talk about FSH receptors. Is that clear? Point number one. Point number two, have you heard of, this is a very important class, extremely important from MCQ point of view. I want full attention in my class. Have you heard of the word called non-disjunction? क्या आपने एक वर्ड के बारे में सुना है जिसको हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं? हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड? Come on everybody, have you heard of the word called non-disjunction? Is the doubt clear now? So do you understand how the zygote stage, can I tell you another super cool fact? Can I tell you another, all our teeth, we all have teeth in our mouth. Hopefully, yes. So all our teeth are also formed. Yes, everybody, all our teeth are also formed in the zygote stage, except the third molars. Except the third molars. Imagine all our teeth are even calcified when we are in the womb. So that is how much calcium the mother requires. Do you understand what I'm trying to tell you? Do you all understand what I'm trying to tell you? All the teeth are even calcified in the womb, except the third molars. That means whatever teeth you have now, are they your permanent teeth? Yes, ma'am. So when were these teeth calcified? When you were in your mother's womb. So who's given calcium for these teeth? Who has given calcium for these teeth? Come on. Who has given calcium for these teeth? The mother has given calcium for these teeth. And therefore, in diseases like syphilis, in diseases like fluorosis, this is the application of science. In diseases like fluorosis, right? Babies don't have teeth, they are in the bone, my dear child. Babies don't have teeth, they are in the bones. So this is a baby bone. These are the primary teeth. The permanent teeth are lying below. The permanent teeth are lying below. All the teeth. See, in the bone you have two sets of teeth. Right? दो दोबारा नहीं आ सकते ना, दो ही तो सेट ऑफ टीथ होते हैं, दोबारा कैसे आ जाएंगे? सो जितनी बच्चों के दांतों की बीमारियां होती हैं वो बाद में नहीं हो सकती. जितनी भी बच्चों की दांतों की बीमारियां होती हैं वो बाद में नहीं हो सकती हैं, वो सिर्फ पहले होंगी. इज दैट क्लियर? और एक और चीज, अगले हफ्ते से आपकी रोज 3 क्लासेस होंगी. सुन लो अभिषेक वर्मा, अगले हफ्ते से आपकी 3 क्लासेस होंगी. तो हम एक बोर्ड का स्प्रिंट लॉन्च कर रहे हैं, हम सुबह की माइंड मैप से कंटिन्यू कर रहे हैं. यस, और शाम को क्या होगा? एनसीईआरटी मार्किंग. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, शाम को एनसीईआरटी मार्किंग, तो टेंशन मत लीजिए. चलिए अब मैं आपको यहां से बताती हूं ये पूरा. इज दैट क्लियर? अगले हफ्ते से 3 क्लासेस होने वाली है. मंडे से सुबह आपकी होंगी नॉर्मल माइंड मैप्स, बोर्ड की स्प्रिंट सीरीज, 11th की स्प्रिंट एंड 12th की स्प्रिंट, एंड ऑब्वियसली आपकी एनसी. और आज की क्लास आपको पता है? अच्छा एक बात बताओ, कम ऑन, हाउ मेनी किड्स इन द क्लास? रेज योर हैंड्स एवरीबडी. कैविटी तो हो सकती है ना बेटा, कैविटी में तो कैल्शियम चला जाता है. कैविटी आप थोड़ा सा थिंक अबाउट इट ना बच्चा, कैविटी तो हो सकती है ना, क्योंकि कैविटी में तो कैल्शियम चला जाएगा. राइट? पे अटेंशन इन द क्लास प्लीज. नाउ हाउ मेनी टाइम्स, आपको कई बार आपने एमसीक्यू सॉल्व किए, आपने जब एमसीक्यू सॉल्व किए तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई वैल्यू आई है, आपसे डायामीटर पूछ लिया, राइट? आपसे नंबर ऑफ राइबोसोम्स पूछ लिए, करेक्ट? आपसे ईयर ऑफ डिस्कवरी पूछ ली, आपसे नंबर ऑफ लोब्स पूछ लिए. मतलब नंबर्स हैं, बेसिकली नंबर्स इन बायो. इस साल क्या डिस्कवरी हुई थी, पूछा गया है. डायमीटर बताओ जी, रेडियस बताओ जी, लेंथ ऑफ फाइबर बताओ जी, कितना होता है, कितने सेल्स हैं, राइट? ईयर ऑफ डिस्कवरी 1661 में साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, राइट? बताओ. 3.4 होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है, कितने बेस पेयर है, पूछा जाता है. एटलीस्ट 5 to 8 क्वेश्चंस एवरी ईयर. यस और नो? से यस मैम, नो मैम. 5 to 8 क्वेश्चंस एवरी ईयर, हर एक चैप्टर में, इन एवरी सिंगल चैप्टर आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज याद रखनी है. एटलीस्ट 20 वैल्यूज हैं हर एक. अच्छा, सबसे कॉमन है टेपवर्म, अर्थवर्म तो चलो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है. कौन से लोब में क्या है, कितने फीट हैं, यस और नो? 5 to 8 क्वेश्चंस, और हर बार हम इनको रॉन्ग करके आते हैं. यस और नो? अगर मैं आपको बोलूं दैट आई एम गोइंग टू गिव यू
cheat sheet. Ta-dan, ta-dan. For everything, every chapter, I'm going to give you a cheat sheet, every chapter. And in every chapter, whatever numerical values come, you'll be like, wow, ma'am. Yes, everybody. So this is your cheat sheet. In every chapter, there are some values which are pure numerical values. इनमें कोई दिमाग नहीं लगाना. These are pure numerical values. But इनके ऊपर कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, कुछ कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं. Yes, everybody. 5 to 8 questions every year will come from this. तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी मुट्ठी में. Yes, they should be in your fist. You should be able to grasp them. That's your cheat sheet. So what time is the cheat sheet? You're most welcome. What time is the cheat sheet? Have you ever heard of a bio cheat sheet? Thank you. What time is the cheat sheet? 3 p.m. Will you come? It's a small class. It's only for you. मैं अपने लिए कर रही हूँ cheat sheet. For whom am I doing the cheat sheet? किसके लिए है cheat sheet? For whom is the cheat sheet? For you. Will you come? Yes, everybody. It's a very important class. अगर आप आओगे, it's something like NCERT marking. Now I'm going to do that for all the series. If you guys come, I will continue the series because you showed me so much of love for NCERT marking series. Next week onwards, I'm going to be taking everyday lectures on NCERT marking series. If you come, I'm going to take classes on the series. If you don't come, I'm not going to take classes on the series. Cool, everybody? Do you get my point? Don't forget the cheat sheet because we're doing it only for you. Right? Chalo. So let's move ahead and let's do this in detail, the ovarian cycle. Thank you so much, everybody. Arunima. Chaliye. Right, everybody? Chalo, 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 chalo. So let's move ahead. This is a very important slide now. Very important slide. AI, इससे पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं. देखो बेटा, ये mother है. I'm going to tell you something very important. You've not read bio like this. You've not read human reproductive system like this. I want full attention in the class. Right? मैं आपको बताऊंगी, आप अपने आप बनाते रहना cheat sheet. Right, everybody? चलिए आइए. So mother है. अगर mother के पास XX है और mother के पास हो सकता है XY. Pin drop silence. Full attention in the class. XX और XY. जो XY है, इसमें Y क्रोमोसोम है. Pin drop silence and full attention please. इसमें Y chromosome है. The Y chromosome contains a gene. I'm writing everything down. Please follow it and write down. It's a very nice mind map. It's a very important mind map that I'm drawing for you. So I want full attention in the class and everybody should do it. So the Y chromosome has a gene. It's called the SRY. It's called the SRY gene. I don't know अगर आपको किसी ने पढ़ाया या नहीं. It's very important from NEET point of view. SRY stands for sex determining region of Y. So it's a sex determining region of Y. It's called the SRY. Is that clear? So XY, male, sex determining region of Y. SRY के पास एक प्रोटीन बनता है. It's called TDF. Testis determining. Testis is a male gland. Factor. Testis determining factor, which develops into the, which helps to develop the male gamete. So do you understand why the differentiation has happened, or which helps you to finally determine or form a male? So do you understand why the differentiation has happened? Do you understand why the differentiation has happened? Because there's a Y chromosome. It all started with the Y chromosome. So there's a Y chromosome. It has a gene called the SRY gene. SRY gene produces a testis determining factor which produces the male gamete. Now here, unfortunately, this is called a default sex. What is it called? Default sex. I will also tell you something else. It also, the testis determining factor forms a duct called the Wolffian duct. Wolffian duct. And Wolffian duct forms the male gametes. Wolffian duct. This is called a default sex. Let us start from the beginning to understand it. From the very beginning, let us start. Absolutely, Dheeraj Paswan, very good boy. Very good. Right? So, default sex means there is no SRY, there is no TDF,
and hence no Wolffian duct. Obviously you can see there's no Wolffian duct, and therefore a duct is formed which is called your Mullerian duct. जब ये नहीं बनता, is there a gene for Mullerian duct? Have I written a gene for Mullerian duct? Say yes ma'am, no ma'am. Have I written a gene for Mullerian duct? Wolffian duct से spermatogenesis होता है, spermatic cord बनता है, सेमनिफरस ट्यूब्यूल बनता है. क्या मैंने मुलेरियन डक्ट के लिए कोई जीन लिखी है? यहां तो मैंने SRY जीन लिखी है. क्या मैंने यहां कोई जीन लिखी है? हैव आई रिटन डाउन अ जीन हियर? राइट? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वुल्फियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट? अब मैं आपको ऐसे oogenesis कराऊंगी कि आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर हो जाएंगे. यू विल नेवर हैव टू गो एनीवेयर एल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन. इज दैट क्लियर? Exactly. So we are talking about males, Sakshi. We are talking about males. So mother can have a child with XY or a child with XX. Mother cannot be XY. Mother can have a child with XY or a child with XX. Mother तो XX ही होगी. Yes, everybody. Done. Right, everybody. ठीक है. सो ये मुलेरियन डक्ट जो है ये oogenesis करवाती है. सो कैन वी स्टार्ट फ्रॉम oogenesis? दिस इज द ग्रोथ, दिस इज द बेस ऑफ oogenesis, राइट? यस, yes, yes. Starting में everybody is a girl because the Y1 takes a little time, right? Is that clear, Yatin? चला, समझ में आ गया? So मदर के एक बच्चा हो सकता है ये, और एक बच्चा हो सकता है वो. बच्चा है मदर XX ही होगी. इज दैट क्लियर? चले, राइट एवरीबडी? चलो. सो कैन आई कम टू दिस पॉइंट नाउ? दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू. दिस, यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होगी. सो इसका बैकग्राउंड पता चल गया सबको? एवरीबडी इज गॉट द बैकग्राउंड. हाउ मेनी लाइक्स? 1 like for this mind map on the screen now, guys. One super cool mind map. And बच्चों, मैं 2 लेक्चर पुराने ले चुकी हूँ जिसके लिए I'm going to flash it on the screen when you see the recordings. एक लेक्चर मैंने वेबिनार का लिया है. One before lecture I've taken of this same topic, जिसके once you see the recording ऊपर flash हो रहे होंगे the end cards. Click on them, see the lecture so that holistically you are able to understand the lecture. It's very important. राइट? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है. फ्रॉम द नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू डू ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ बॉटनी. सो आई विल स्टार्ट विद अ मेंटी टेस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. डोंट फॉरगेट, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज योर होमवर्क दिस वीकेंड. इज दैट क्लियर? Is that clear? Photosynthesis and respiration is your homework this weekend. बचा हुआ सारा बॉटनी मैं खत्म कराने वाली हूं. Is that clear? So please, मैंने कल होमवर्क शेयर कर दिया था, आप लोग पढ़कर आइएगा. Come now. So if this is the mother and let us say that the mother is carrying a fetus. आज मैं erythroblastosis fetalis भी करवाऊंगी अगर टाइम बचेगा. Right? So the mother is carrying a fetus. Is that clear? Yes. Physiology and cell cycle भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे. Don't worry. If the fetus, and the fetus is a girl child, the mother will start producing eggs. Easy way. Correct? And these are all produced, all of them are produced before birth of child. Is that clear? Before birth of child. That means number 1. Number 2, कब प्रोड्यूस होते हैं सारे के सारे? These are certain very basic things which you need to understand. कब प्रोड्यूस होते हैं? All gametes are produced in fetal stage. Which stage? Fetal stage. And when the child is born, जब बच्चे का जन्म हो गया, जब when the child is born, please इसको ध्यान से सुनिए. When the child is born, please इसे ध्यान से सुनिए. When the child is born, full attention. Is that clear? The development is halted. यहाँ लिख देती हूँ मैं halted development.
क्या लिख दिया मैंने यहां देखो, द डेवलपमेंट इज हॉल्टेड, रोक दी गई है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज हॉल्टेड। अब बेटा जब ये चाइल्ड प्यूबर्टी को अटेन करेगा, प्यूबर्टी ये सब मैं आपको डिटेल में कराने वाली हूं, जब ये चाइल्ड प्यूबर्टी को अटेन करेगा, ये इसका एग है जो हॉल्टेड था, पर प्यूबर्टी को अटेन करने में, अब मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूं इसका, बहुत सिंपल एग्जांपल। आप कहीं घूमने गए, यू वेंट आउटसाइड समवेयर, फुल पिन ड्रॉप, राइट, मतलब अरेस्टेड, यस। सो व्हेन यू गो टू, आप जंगल ट्रैक करने गए, यू वेंट टू अ जंगल टू ट्रैक, you are carrying your phone, phone है आपके पास, but because you went into the lot of woody area inside, आपको फोन को सिग्नल कैच नहीं हो रहा है, you have the same, everything is there, do you catch the signal? Do you catch the signal if you go inside? No. So the moment you start coming out of the jungle, you will again signal negative कर देते हैं, यहां क्या हो जाएगा, सिग्नल पॉजिटिव। So this is like puberty. That means the moment you enter into puberty, the egg will develop this. What is this on the surface of the egg? What is this on the surface of the egg? Tell me. It is not on the ovary. It is on the surface of the egg. What is it on the surface of the egg? Tell me. Anybody? Come on guys. मतलब आप लोगों को ये मुश्किल लग रहा है, आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है ये सब। How many kids in the class? Why is the chat so slow? Why is the chat so slow? No, 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 no. No. Yes, Sanjay Sarin has answered first. It is your receptors. And your pituitary will start to secrete follicle stimulating hormone. And then it will start to redevelop. Did you understand this concept? Did you understand this concept? How many kids in my class? That means you're all finding it tough. 500 students in the class, you're all finding it tough. Is that clear? You've understood? Did you understand? Did you understand now? Did you understand? तो fetus अगर गर्ल चाइल्ड हो, मदर का fetus अगर गर्ल चाइल्ड हो, तो एग्स जो है वो इन प्रेगनेंसी कह लो आप, इन प्रेगनेंसी यहां पर प्रोड्यूस हो जाते हैं, बट दे कांट रिस्पॉन्ड, they can't respond. Why can't they respond? Right? All are produced, all the eggs are produced before the birth of the child. All the gametes or eggs are produced in fetal stage. Right? But they are halted. Halted का मतलब होता है arrested. Growth उनकी arrest हो गई है. Growth उनकी stop हो गई है. Growth puberty में होगी. Puberty में ऐसा क्या होगा? There are no receptors पहले. Puberty में ऐसा क्या होगा आफरीन? Puberty में the receptors will become active. The receptors and the pituitary will start to secrete FSH. आपके पास एक brand new phone है. अगर आपके brand new phone में SIM card नहीं है और बाहर signal नहीं है, is the phone of any use? You have a brand new phone. You have a brand new phone. See, NCERT is always enough, but you need to understand the NCERT. Right, everybody? Right, everybody? Understood? Is that clear? Will the phone work without the SIM card and the signal? No. So you require the receptor and you require the follicle stimulating hormone. So once the receptors come, up now also one more thing. You need to understand this. Can I move ahead? Can I move ahead on your screens? Receptors become active in puberty. These are the concepts, are the fundas which will help you solve your questions. Yes? NCERT मार्किंग में सिर्फ 3 पेज हुए हैं, टेंशन मत लीजिए. NCERT मार्किंग में आपको अगले हफ्ते से एक दिन में 10-10 पेज मार्क करवाया करूंगी. ठीक है? ठीक है? पर NCERT मार्किंग का हमें टाइम डिसाइड करना पड़ेगा. हम टाइम डिसाइड करते हैं, अर्ली मॉर्निंग कर लें, सुबह 7 बजे, 8 बजे देखते हैं. लेट्स सी, एक टाइम डिसाइड करेंगे फिर हम कर लेंगे. ठीक है? मैं एक एक करके फेजेस के अरेस्टिंग के बारे में भी बताऊंगी, बट पहले हम थोड़ा सा फोकस करते हैं जनरल कॉन्सेप्ट्स पे, फिर मैं डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट्स पे जाऊंगी. ठीक है? तो अब आप मान लो ये आपकी ओवरी है. इस ओवरी में hundreds of thousands of
अब मैं नाम एग्जैक्ट नहीं ले रही बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, देन इनटू फैक्ट्स. हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स है, इमेच्योर एग्स. अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं समझा रही हूं, एंड आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है. जिस तरह से आज आप पहली बार इतना कम जवाब दे रहे हो, इज इट द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग यू ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑन वी बायोटॉनिक? से यस मैम, नो मैम. अंकिता, खुशी, आई विल टेल यू. रिसेप्टर्स होते हैं, वो बस एक्टिव हो जाते हैं. अंकिता, खुशी, वेट, लेट मी टेल यू. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग यू ह्यूमन रिप्रोडक्शन. इतना स्लो रिस्पॉन्स तो मेरी क्लास में कभी भी नहीं हुआ. यस, इतना स्लो रिस्पॉन्स. मतलब आपको नहीं आता. कितने बच्चे क्लास में? मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है आज क्लास में. आई एम वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि इतने कम, इतना ज़्यादा कम, मतलब इतना कम कमेंट. आप सबको डाउट हो रहा है. एनीवेज, आ जाइए. सो आपका एग जो है वो इमेच्योर स्टेट एग्स होते हैं. ये जो इमेच्योर एग्स होते हैं, कैन ऑल ऑफ देम डेवलप? आप एक साथ सारे एग्स को डेवलप करवा सकते हो? कैन ऑल ऑफ देम डेवलप? सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स को एक साथ डेवलप करवा दो, बताओ. कैन वी हैव ऑल ऑफ देम डेवलप? नो. और आपके पास 2 ओवरीज होती हैं. देखो कितना अच्छा होता है ओवरी, राइट एंड लेफ्ट. तो आप ये मेरी बात समझो अभी ध्यान से, प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रही हूं. राइट 1, अगर जनवरी के महीने में राइट ओवरी डेवलप की है तो फरवरी के महीने में लेफ्ट ओवरी. इस पे एमसीक्यूज आते हैं. मार्च के महीने में राइट ओवरी. दैट मीन्स डू द ओवरीज ऑल्टरनेट. मैं यहां लिख रही हूं, डू द ओवरीज ऑल्टरनेट. पहले बताओ, डू द ओवरीज ऑल्टरनेट. इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा. 1, यस मैम, yes ma'am. And do all of them develop? Do all of them develop? No ma'am. So that means इनमें से very few will have receptors becoming active. ये इसको हम एक वर्ड कहते हैं जिसको हम जेनेटिक प्री प्रोग्रामिंग कहते हैं. What do we call it? जेनेटिक प्री प्रोग्रामिंग. ये जेनेटिकली डिसाइडेड होता है. एक महीने एक ओवरी डेवलप करेगी, दूसरे महीने दूसरी ओवरी ऑल्टरनेटिवली डेवलप करेंगे, और उनमें से 1 या 2 के ऊपर ही रिसेप्टर आएंगे. क्या सबके ऊपर रिसेप्टर आ जाएंगे? क्या सबके ऊपर रिसेप्टर आ जाएंगे? जेनेटिक प्री प्रोग्रामिंग, क्या सबके ऊपर रिसेप्टर आ जाएंगे? नहीं. तो ये जेनेटिक्स होता है, पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि कौन सी ओवरी डेवलप करेगी. समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? राइट. ये समझना और ये समझाना आसान नहीं है. मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बहुत वीक होते हैं. राइट. यहां पर अब ये समझ में आएगा क्या हो रहा है. नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. चलो समझाओ. कैन आई एक्सप्लेन इट टू यू? कैन आई एक्सप्लेन इट टू यू? यस एवरीबडी. चलिए अब देखते हैं. तो बेटा जो सबसे पहली होती है, ये होती है प्राइमोर्डियल. बहुत सारी प्राइमोर्डियल है, उनमें से मान लो 1 या 2 के ऊपर 1 or 2 आउट ऑफ देम स्टार्ट टू डेवलप रिसेप्टर्स. सो जस्ट 1 or 2 आउट ऑफ देम स्टार्ट टू डेवलप रिसेप्टर्स. मान लो इसके ऊपर रिसेप्टर आना शुरू हो गया. This is the epithelium of the ovary. The epithelium of the ovary is called germinal epithelium. Write it down. It's an MCQ question. Germinal epithelium is called as cuboidal. क्यूबॉइडल. देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने जो एंडोक्राइन क्लासेस ली थी, कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं. जब मैंने एक्सक्रीटरी की क्लास ली थी, देखो वो क्लासेस, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है. क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज ऑलवेज सेमनिफरस ट्यूब्यूल की ओवरी की क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी. ठीक है. तो ये रही आपकी प्राइमोर्डियल. प्राइमोर्डियल ने एफएसएच को एक्यूमुलेट करना शुरू किया. देखो मैं इसको बना रही हूं, इसके पास रिसेप्टर आ गए. सो प्राइमोर्डियल से बना प्राइमरी फॉलिकल्स. मान लो प्राइमरी बनेंगी, मान लो 2 डेवलप होना शुरू हो गई. सो 2 ऑफ देम विल बिकम प्राइमरी. 2 में से ओनली 1 विल गो अहेड एंड बिकम सेकेंडरी, एंड ओनली 1 विल फाइनली बिकम द ग्राफियन follicle, the well developed follicle, and it's going to burst, releasing the oocyte. and जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कहेंगे कॉर्पस लूटियम. 3 महीने तक कॉर्पस लूटियम रहेगा. अगर प्रेगनेंसी हो गई, फाइनली वो एक छोटा सा स्कार बन जाएगा, ऐसे व्हाइट कलर का छोटा सा स्कार, उसको कहते हैं कॉर्पस albicans. So can I explain this entire thing to you? Primordial, primary, secondary, tertiary, and your Graafian follicle. Right, everybody? Correct? Is that clear? Mesovarium is called the ovarian ligament.
ओवेरियन लिगामेंट, ये समझाऊं मैं अभी आपको अच्छे से। ओवेरियन लिगामेंट को हम मीसोवेरियम कहते हैं, राइट? हैंडमेड मैप से समझाऊं? शुड आई एक्सप्लेन विद माय हैंडमेड माइंड मैप्स? राइट, ओवेरियन। तो अगर आपका ऐसा है तो ये आपका मीसोवेरियम होता है और इसके बीच में एग, ये ओवरी लगी होती है। दैट लिगामेंट इज कॉल्ड मीसोवेरियम। यस एवरीबॉडी, कॉर्पस हेमोरेजिकम, जब ये फटता है तो उसको कॉर्पस हेमोरेजिकम कहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ब्लीडिंग भी होती है। तो अब मैं आपको ये डिटेल में समझाती हूँ। बदले में आप क्या करोगे मेरे लिए? विल यू सब्सक्राइब टू माई चैनल? Yes, will you do that? Will you subscribe to our channel, guys? We're not even taking a leave on Sunday. I have 3 classes with you tomorrow. 3 classes. So 10 o'clock, there's a very famous principle called Vani's principle. What is that very famous principle called Vani's principle? जो मेरे रेगुलर क्लास के बच्चे हैं उनको ये पता है। अच्छा मुझे ये बताओ, कितनी बार do you feel stuck at a score? 450 से आगे ही नहीं बढ़ रहा है मैम, 400 से आगे ही नहीं बढ़ रहा है मैम। Yes or no? मैम 450 से आगे कैसे बढ़ाएं? 500 क्रॉस ही नहीं हो रहा है मैम। 375 पे मेरा स्कोर अटका हुआ है मैम। कितनी मेहनत कर रही हूँ बट माई स्कोर इज स्टक एट 475, 450, 460। सो आई हैव अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कॉल्ड वानीज प्रिंसिपल, which I've been sharing with all successful students for a very long period of time. I shared it with my regular class students in some few days ago and they got like the most amazing response. So tomorrow 10 o'clock there's a special class on Vani's principle. Tomorrow I think after that evening we are meeting with NCERT discussion and we are also meeting at 5 o'clock tomorrow with some, do you have doubts? बहुत लोगों को अभी तक कोड्स के डाउट है, कुछ डाउट्स है, कैसे पढ़ना है, फिजिक्स नहीं हो रही है, केमिस्ट्री में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो रखा है, फिजिक्स में प्रॉब्लम है। सो इन द इवनिंग वी आर मीटिंग अगेन एट 5 o'clock with a lot of थिंग्स। एंड आप में से एक और लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको आज बतानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू जॉइन द क्रैश कोर्स बट कोई ना कोई प्रॉब्लम है क्या? फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है? कैन आई गिव यू अ वे टू जॉइन द क्रैश कोर्स? कैन आई गिव यू अ वे टू जॉइन द क्रैश कोर्स? कैन आई मेक इट ईजियर फॉर यू? यस, कैन आई मेक इट ईजियर फॉर यू? हैव यू हर्ड ऑफ एन एग्जाम? So me and Vedantu, that is one only, we have tried to come up with this. We have tried to come up with this, that let us try to give you 99% scholarship. Do you want to get it? Do you want to get it? Yes or no? Do you want to get 99% scholarship so that it becomes very easy for you to join the crash course? Because we've got such amazing response, we want to make it free for you. Yes or no? Yes, it's because of lutein. Yes, 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 yes. So when I see you tomorrow at 5 p.m, I will tell you how to do VSAT to get 99% scholarship. Will you be there? Because at least 5,000 mails I must have received saying, ma'am, financial problem, ma'am, this problem. So we want to make it easier for you through VSAT. So then when you write to us, we try to help you as much as we can. We decided as a team, we sat out. I know, and one of my students got 99.999 percentile in JEE. Yes, and she's a PCMB student, KVPY cleared. Yes, so then I'm trying to take a class at 5 p.m. tomorrow, trying to make it easy for you to do VSAT. Is that clear? Yes, thank you so much. So come back to the class now. So let's come back to the class and let's talk about this. तो आज आपको चीट शीट मिस नहीं करना है बच्चों। You please write down, 3 बजे चीट शीट है, कल सुबह वानीज प्रिंसिपल है और कल शाम को VSAT है। Is that clear? Yes, so for crash course we'll try and give you a lot of scholarships to join crash course, but you have to be the top person in the VSAT exam. How do you do that? Attend the class at 5 o'clock tomorrow. Is that clear? Come back. We'll give you an opportunity. If you are deserving, we will give you an opportunity. Is that clear? Yes, if you are deserving, we will give you opportunity. Next week we are doing NCERT marking. Hi Ram, कितना कुछ है? Yes or no? चलो आ जाओ। Yes, everybody, चलिए। So आ जाइए। So ये बेटा, ये आपका मान लो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। प्राइमोर्डियल। It's a very very interesting thing which I'm drawing here. It's your primordial follicle. Correct? इसके अंदर एक एग सेल, एक एग डेवलप हो रहा है और इसके बाहर की लेयर है। See?
कैन यू सी दैट? और ये इसके इस पे रिसेप्टर आ गया. सी द रिसेप्टर, सी द रिसेप्टर प्लीज. और ये आ गया रिसेप्टर पे एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? FSH. कहां अटैच होगा? कैन यू सी दैट? कहां अटैच होगा? बेटा मैं टाइम टेबल दे दूंगी एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज का. कैन यू सी? कैन यू सी दैट? So it is going to start to develop. Folliculogenesis, right? बेटा एनसीईआरटी सीरीज मैं ही करवाऊंगी और मैं करवाऊंगी, पर मैं अगले हफ्ते से करवाऊंगी मंडे से. तो मैं आपको संडे शाम को एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज का टाइम टेबल दे दूंगी. ठीक है? प्रॉमिस? डन? अगले 10 दिनों का टाइम टेबल दे दूंगी. ठीक है? अभी मुस्कुराइए और क्लास में ध्यान दीजिए. ठीक है? इस संडे शाम को मैं आपको एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज का टाइम टेबल दे दूंगी. ठीक है? अब मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूं, क्या आप प्लीज मेरी क्लास में ध्यान देंगे? प्लीज. यस. कहीं नहीं जा रही है एनसीईआरटी. वानी मैम भी कहीं नहीं जा रही है. ये स्टूडियो भी कहीं नहीं जा रहा है. आप लोग भी कहीं नहीं जा रहे हो, पर आप लोग बीच बीच में शैतानी करते हो, इधर उधर चले जाते हो, क्लास में नहीं आते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो. यस, बहुत दिल दुखाते हो. बट एनीवेज नेवर माइंड, आ जाइए, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से पढ़ लीजिए. राइट? मैं तो कहीं नहीं जाती, वी बायोटॉनिक भी कहीं नहीं जाता. बस आप लोग ही इधर से उधर घूमते रहते हो और क्लास में नहीं आते हो. यस, आइए, मुस्कुराइए. आप वानी मैम के साथ है. यस, आ जाइए. संडे तक कोई नहीं है बेटा. आज तो सैटरडे हो गया, कल तक कोई नहीं है. ठीक है? आ जाइए. ठीक है? आइए. चलिए, तो अभी आपको समझ में आया मैं क्लास लूं या मैं छोड़ दूं? क्लास चले, आगे बढ़ाए, या हम आज गप्पे मारे? आज आप गप्पे मारने के मोड में बहुत ज्यादा लग रहे हो. यस, मुस्कुराइए. बिल्कुल आप वेदांतु में पढ़े अभी. और मुझे पता है आप लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इसीलिए कल शाम को 5 बजे की क्लास लगाना बहुत ज़रूरी है. वीसेट का एग्जाम दीजिए, टॉप में आइए और बहुत 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 अमेजिंग ऑफर्स पाइए. राइट? आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए. राइट? तो ये देखिए, अब ये डेवलप होना शुरू होगा. तो जब ये डेवलप होना शुरू होता है, इसमें सेलुलर प्रोलिफरेशन हो जाती है. देखो, ये जो बाहर के आपको लेयर ऑफ सेल्स दिख रहे हैं, देखो ये सारे बढ़ गए. देखो, दिख रहा है आपको? एग कहीं कोने में एक बेचारा एग पड़ा है, बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ सेल्स फैल गए. दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? पूरा फैल गया, ये ग्रो कर गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. दिस इज कॉल्ड योर प्राइमरी फॉलिकल. क्या कहते हैं इसको? करेक्ट? एनी डाउट स्टिल हियर? इट्स ऑल सिंपल, इजी. प्राइमरी फॉलिकल. राइट? बिल्कुल मेरा आशीर्वाद आपके साथ है अमन. आप बहुत अच्छा करेंगे, पर मैं कोई नहीं होती आशीर्वाद देने वाली, पर आप बहुत अच्छा करेंगे. चलिए आइए. तो अब क्या होता है, अब धीरे धीरे देखो बेटा, ये जहां से डेवलप कर रहा है, ओवरी में फ्लूइड होगा. ये ओवरी में डेवलप कर रहा है, तो धीरे धीरे ओवरी में फ्लूइड होगा कि नहीं होगा? बताओ, ओवरी में फ्लूइड होगा कि नहीं होगा? बताओ, यस या नो? यस. आज बातें कर ले. आज आप मुझे पढ़ने के मूड में लग नहीं रहे हो सब बच्चे. आज हम एक काम करते हैं, बातें कर लेते हैं. यस और नो? यस. तो ओवरी में फ्लूइड होगा. ओवरी, तो ये फ्लूइड इसके अंदर जाएगा. ये फ्लूइड, तो इसकी वजह से जब भी फ्लूइड अंदर जाएगा, क्या ये सेल्स एक कोने में पुश होने लग जाएंगे? क्या ये सेल्स एक कोने में पुश होने लग जाएंगे? Will the cells start getting pushed because the fluid will enter inside? Will the cells, जो अंदर के cells हैं, will they start cells getting pushed to one side? है ना? Yes or no? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. इसमें कोई इतना भी डाउट नहीं है. राइट? तो बेटा यहां पे जो सेल्स हैं, यही वाले सेल्स, या कलर उन्हीं से कलर से रखते हैं.
so that you right. तो यही सेल्स कोने में जाने लग गए, बाहर की लेयर्स बनाएंगे. तो बाहर कौन सी लेयर बनेंगी? थीका, एक्सटर्ना, इंटरना, दो. बीच में ये एग बीच में ही रहेगा. थीका, एक्सटर्ना, इंटरना थोड़ा फ्लूइड भी सिक्रीट करेगा. इस एग के बाहर कुछ सेल्स इस एग के बाहर रह लेंगे, कोरोना रेडिएटा, और कुछ सेल्स एक ऐसा रास्ता बनाएंगे पहाड़ टाइप जिसके थ्रू ये एग बाहर जाएगा. सो नाउ विल यू फाइनली बी एबल टू सी आउटर लेयर्स थीका एक्सटर्ना, देन थीका इंटरना. विल यू बी एबल टू सी द एग? एग की कवरिंग होती है जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा के बाहर कैन यू सी कोरोना रेडिएटा? क्या आपको धीरे धीरे कोरोना रेडिएटा? कैन यू सी क्यूमुलस oophorus? And will you see antral fluid? Right? And obviously ये जो थीका एक्सटर्ना इंटरना है ये थोड़ा सा फ्लूइड अंदर सिक्रीट करेगा, एंट्रल फ्लूइड. तो ऐसा ये होगा. कोरोना रेडिएटा आपको दिखेगा, ये कोरोना रेडिएटा, ये क्यूमुलस oophorus, ये एंट्रल फ्लूइड, ये थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये एग की कवरिंग जिसको हम जोना पेलुसिडा भी कह सकते हैं. सो ऐसे. और ये सब क्यों हुआ? दिस इंटायर थिंग हैपेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ follicle stimulating hormone which was released by the pituitary because it developed receptors for follicle stimulating hormone. और कहीं नहीं गया. What is cumulus oophorus? क्या आपको ये पहाड़ी नजर आ रही है? क्या आपको ये पहाड़ नजर आ रहा है? अगर ये फटेगा, ये फट गया यहां से, तो एग इस पहाड़ से बाहर आएगा. Can you see this little hill like this जिसके थ्रू एग बाहर आएगा? So it will help in एग रिलीज. एग बेचारे को तैरना नहीं आता, द एग डजंट नो हाउ टू स्विम. तो अगर वो एग इधर चला गया वो इंट्रल फ्लूइड में डूब जाएगा. सो इट हैज टू कम आउट ओनली थ्रू द क्यूमुलस oophorus. यू वांट टू क्लिक अ स्नैपशॉट? प्लीज डू. राइट. जोना पे मैं सब कुछ पे आऊंगी, जोना पेलुसिडा की डिटेल्स पे आऊंगी. टेक अ स्नैपशॉट. सो द एग कम्स आउट थ्रू द क्यूमुलस oophorus. इट्स अ पॉइंट फॉर कमिंग आउट ऑफ द एग. टेकन अ स्नैपशॉट. I'm coming to that, Khan. Right? Zona pellucida is secreted by the egg only, beta. Done? Yes. Pars distalis. Yes. तो अब आपको देखो ये धीरे धीरे देखो कैसे छोटी छोटी एकदम से कैविटी नहीं बनती है. देखो एकदम से कैविटी नहीं बनती. Can you see that? How many kids in the class? Can you all see that? Thank you, Rajendra Joshi. Can you all see that? See? ऐसे धीरे धीरे कैविटी बनती है. और ये देखो पूरी कैविटी बन गई फ्लूइड वाली. और ये पूरे सेल्स हैं, ये सारे सेल यहां से आएगा बाहर. इज दैट क्लियर? और दिस जब ये पूरा ऐसा मैच्योर हो गया, मैं आपको भी फोटो दिखाती हूँ. चलो आगे बढ़े. जब ये पूरा ऐसे मैच्योर हो गया, ये देखो कितना, और देखो क्या कितना अच्छा लिखा हुआ है मैंने. अब आप ध्यान दो पहले क्लास में, फिर समझ में आएगा. ध्यान दो पहले क्लास में. कैन यू सी दिस फ्लूइड? फॉलिकुलर फ्लूइड. कैन यू सी बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन है? कैन यू सी बाहर फिर थीका एक्सटर्ना इंटरना बाहर होता है. ये दिख रहे हैं सेल्स हैं यहां. एंड कैन यू सी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कैन यू सी दिस हिलॉक? कैन यू सी दिस हिल? कीर्ति, आई विल डू दैट बच्चे, आई विल डू दैट. समझ में आ रहा है? थैंक यू साक्षी. समझ में आ रहा है? ये देखो हिल ऐसे बाहर चला जाएगा. राइट. ग्रैन्युलोसा सेल्स, प्राइमरी oocyte. तो जो रिलीज होगा जब ये फटेगा यहां से बाहर आएगा. जब ये फटेगा, when it will burst and it will come out, the primary oocyte will come out. Is that clear? The primary oocyte will come out. And the primary oocyte is at what stage? 2n arrested in prophase 1. It's still diploid, it's arrested in prophase 1. Is that clear? Is that clear, everybody? Is that clear? Yes, it does form estrogen. Zona pellucida is a glycoprotein layer. It's not cellular. It is acellular. At least 10 times it has come in MCQs. 10 times. Granulosa cells are cuboidal and low columnar cells. ये granulosa cells है. Cuboidal cells होते हैं बहुत छोटे columnar. Theca interna secrete estrogen at least 5 times MCQ question. Right, everybody?
सानू, आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चे? यस सानू, मैं अपने फेवरेट बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ाती हूं बच्चों. सानू, डिड यू अंडरस्टैंड? सी, आई रेड योर कॉमेंट. यस. व्हाट इज द रोल ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन? बच्चे, वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन वेस्टिजियल है ह्यूमन बींग्स में, राइट? देन देखो थीका एक्सटर्ना, फिर एंट्रम, ये कैविटी एंट्रम है, देखो एंट्रम है ये कैविटी, राइट? कोरोना रेडिएटा ये रहा इनर मोस्ट इसके आसपास. ये ब्लू कलर का जो है वो जोना पेलुसिडा है. ओ ये ब्लू कलर का जोना पेलुसिडा ये, और ये आपका कोरोना रेडिएटा है, और ये आपका क्यूमुलस उफोरस है. एनी डाउट्स? ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, और यहां इस कैविटी में होगा, यहां ईस्ट्रोजन होगा. तो जब ये फटेगा, व्हेन इट विल बर्स्ट, व्हिच वी हैव सीन, ईस्ट्रोजन विल बी रिलीज्ड. When it will burst, this fluid will have estrogen. Is that clear? चमक गया? PDF will be made available right after the class. Understood, Kalpana? Yes, corona radiata is the innermost. Understood? See, this is a real diagram. See the enteral fluid. See oocyte. See zona pellucida. Is that clear? समझ में आया? Below the basement membrane, you have granulosa cells. Inside you have granulosa cells. Outside you have theca externa and theca interna. Done? And see, this is primordial, primary. देखो मैंने बोला था 3 या 4 प्राइमरी बनेंगे. बोला था कि नहीं बोला था? मैंने बोला था प्राइमोर्डियल, 3 या 4 प्राइमरी, 1 सेकेंडरी, मेच्योर, फॉलिकल फट गया. तो फटने के बाद देखो थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है. देखो अंदर थोड़ा सा रेड है. सी प्लीज, सी दैट प्लीज. इट इज फॉर सम टाइम कॉल्ड कॉर्पस हेमोरेजिकम. दिस वाज अ ग्राफियन फॉलिकल. Once it bursts, after it bursts, we call it corpus luteum, and finally it remains as a little scar tissue, white in color. It's called corpus albicans. Is that clear? It's called corpus albicans. So can I now see when it is bursting? जब ये burst हो रहा है, can you see the endometrial thickness? Can you see endometrial thickness is so high so that it should get implanted. It bursts on the 14th day. See how you have to connect dots, my dear kids. It bursts on the 14th day. Does it not? Does it burst on the 14th day? Yes ma'am, no ma'am. Does it burst because of LH surge on the 14th day? And when should it get implanted? 21st day. So see the increase. See the increase. Ovulation occurs because of LH surge on the 14th day and it gets implanted on the 21st day. And see between this, see, it is increasing. Endometrial thickness is increasing. See? Is that clear? Can you see the increase in the LH surge? Yes, everybody? Thank you. Don't forget to like, share and subscribe. Yes? Bye.